और क्या नाम, अंबानी जी के गुजरने के बाद इन्होंने झगड़ा कर लिया, अलग हो गए, सारा हाथ इसमें अनिल जी का ही था। और जी वही वही रह गए। ये सब चीजें ना बहुत गहराई का बात बोले का, बहुत समाज की बात। पता है, हिंदुस्तान के 90% घर में यही होता है। बहुत अच्छा लगा आपको कल का विचार। थैंक यू ओम प्रकाश जी, अपने विचार शेयर करने के लिए। आपने अच्छा बोला मेरे लिए, बुरा बोला वो तो अलग बात है। आपने विचार शेयर किया वो सबसे अच्छी बात है, और आपने उस पर चिंतन किया वो और भी सुंदर बात है। तो आज मैं आपको उसी जर्नी के बारे में जो हमने कल बात की थी उसके बारे में और थोड़ी गहराई में अपने जाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक और वीडियो खोज के रखी है। जैसे मैंने कल बताया था, एक बात बोली थी मैंने कि जल में भी अपनी एक सोच होती है, अपनी मेमोरी होती है। जल में जीवन जो हम बोलते हैं, जल में जीवन है तो जीवन में तो याददाश्त भी है। तो जल में भी अपनी, जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जल का जो कण होते हैं, उस कण की भी अपना दिमाग होता है, और वो दिमाग में चीजों को रख करके रखता है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, इस वीडियो को देखिएगा। आई एम श्योर आपको कुछ अच्छा लगेगा। Does water hold memory? Can its molecular structure retain information? Can the influence of human thought clean and purify water? Or is that just a horseshit? Does water hold memory? So, by now you've heard it through the grape web about these rice water experiments. You project feelings of love, hate, ambivalence onto water, which alters how the rice inside decomposes. These, along with the now famous emotion-infused frozen water crystals, were the work of Dr. Masato Emoto, who was famously featured in the 2004 edu drama docu-thingy, What the Bleep Do We Know? Or perhaps in your existential quanderings, you stumbled across similar claims under the headings of spirit science, quantum mysticism, or homeopathy. Now for some, spirit science, now you've heard it through the grape web about these rice water experiments. You project feelings of love, hate, ambivalence onto water, which alters how the rice inside decomposes. These, along with the now famous emotion-infused frozen water crystals, were the work of Dr. Masato Emoto, who was famously featured in the 2004 edu drama docu-thingy, What the Bleep Do We Know? Or perhaps in your existential quanderings, you stumbled across similar claims under the headings of spirit science, quantum mysticism, or homeopathy. Now for some, spirit science may challenge gourmet hot dog as oxymoron of relationship with the universe. Many insist that human consciousness has a powerful physical effect on the world around us, most notably on water, a substance that fuels all life on this planet. Our bodies are mostly comprised of water. If water doesn't hold memory, why do so many people continue
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, वीडियो की आवाज आ रही है। Studying its strange properties in with an exponentially growing world population, the need for clean water science could not be greater. If we can purify drinking water using new methods, we need to know now. And if it's all a bunch of, we need to drop this speculative flummery and find real solution. Ours is through rigorous scientific testing. Conroe, Texas. My name is Paul Pierce, Water claims through a full battery of scientific and we need these types of as we possibly can. Listen, people, either we're on the brink of revelation concerning the most important molecule to life on this planet, or thousands of people have been deceived by pseudoscientific information. The issue of clean water availability, the issue of scientific information, the issue of deceived by pseudoscientific information. ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी, तो आपने जो ये वीडियो देखी, मैं उस वीडियो के बारे में बताता हूँ। तो उसमें आपने कुछ चित्र देखे जिसमें 3 अलग-अलग जार थे, अलग-अलग भांड थे उसमें। और उसमें उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया कि उसमें उन्होंने चावल भर दिए, तीनों में थोड़े-थोड़े। और थोड़े-थोड़े चावल भरने के बाद क्या किया कि उन चावल को पानी भर दिया और अलग-अलग 3 कंटेनर को रख दिया अलग जगह। एक को वह बोलते, गालियां देते, एक को वह अच्छे शब्द बोलते और एक को कुछ नहीं बोलते। तो उन्होंने अलग-अलग 3 कैटेगरी के बनाए। तो जिसको अच्छा बोला वो चावल तो अच्छे हो गए थे, और जो जिनको गाली दी, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो चावल सड़ गए। तो उन्होंने देखा जिन चावलों को, जिन जल को, जिस पानी को उन्होंने सबसे अच्छा शब्द सुनाए, वो जो थे, वो चावल सबसे अच्छे कंडीशन में पड़े रहे। दूसरा, ये जो आप चित्र देख रहे हैं सामने, ये उस पानी का चित्र है जिस पानी के कण को, जिस पानी की गिलास को बहुत ही अच्छे शब्द सुनाए गए, उस पानी का कण का फोटो इस तरीके का आया जब उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया। ठीक है, तो ये एक है। अब मैं एक दूसरा सुना रहा हूं, उसको देखिए। क्या उस याददाश्त के स्तर को अपने याददाश्त होती है, क्या उस याददाश्त के स्तर को अपने जीवन में लाने की कोई संभावना है? क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक सबूत या आध्यात्मिक सबूत है, या कोई दूसरा सबूत उपलब्ध है? चूंकि मैं एक रसायन शास्त्री हूँ। अगर मैं आपके बीच में आ जाऊं तो चलेगा? आज खासकर पिछले 4.5 सालों में पानी और पानी की क्षमता पर जबरदस्त मात्रा में रिसर्च की गई है। यह अनजाने में शुरू हुआ क्योंकि जिस तरह से दुनिया में इस्तेमाल करने लायक पानी की मात्रा घट रही है, उदाहरण के लिए भारत में 1947 में एक इंसान के लिए औसतन जितना पानी उपलब्ध था, पीने योग्य पानी, आज उसका सिर्फ 20% बचा है। कहते हैं कि 2025 तक हमारे पास केवल 7% बचेगा 1947 की तुलना में। प्रति व्यक्ति, हर इंसान के लिए केवल इतना पानी ही उपलब्ध होगा। तो इस वजह से पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। ज्यादातर काम इस दिशा में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें गहरे और गहरे जाते गए और उन्हें पता चला, एक रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रासायनिक घटकों को बदले बिना आप उसकी आणविक संरचना को यूं अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि पानी अब बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करेगा अपने आम बर्ताव की तुलना में। ये इस हद तक संवेदनशील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक गिलास पानी लूं और उसे एक खास तरह से देखूं और आपको दूं, तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूं, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह अंधविश्वास नहीं रहा,
ये विज्ञान है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। लगभग 17 साल पहले मैंने एक 90 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की। 90 दिन का कार्यक्रम किस लिए? भूत शुद्धि को योग का सबसे मौलिक पहलू माना जाता है। भूत शुद्धि का मतलब है, आप भूत जानते हैं, पंचभूत, प्रकृति के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति में ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व ही वो मूल घटक हैं जिनसे ये शरीर बना है, ये ग्रह बना है, पूरा ब्रह्मांड बना है ना? ये पूरा अस्तित्व एक तरह से इन 5 तत्वों का खेल है। तो भूत शुद्धि का उद्देश्य है हमारे सिस्टम में इन 5 तत्वों को शुद्ध करना। ये 5 तत्व मेरे भीतर कैसे बर्ताव करते हैं, यही मेरे गुणों को तय करेगा। इस आधार पर भूत शुद्धि योग का मूल रूप है। बाकी सब कुछ इसी से निकला है, जो विभिन्न लोगों द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाता है, इसकी समरूपता को समझे बिना। लेकिन इसका उद्देश्य है 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में लेना। जब आप भूत शुद्धि का एक खास समय तक अभ्यास करते हैं, तब आपको भूत सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि 5 तत्वों पर आपका पूरा नियंत्रण है। इस हद तक कि इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जहां अपना शरीर छोड़ने के समय एक योगी कमरे में जाते हैं, लोग कमरे को बाहर से बंद कर देते हैं, और कुछ दिनों के बाद जब लोग कमरा खोलते हैं तो वो वहां नहीं होते, क्योंकि वो खुद को पदार्थ विहीन बना लेते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको उनका अंतिम संस्कार करना पड़े या किसी को उन्हें कब्र तक उठाकर ले जाना पड़े। वो बस अपने सिस्टम को पदार्थ विहीन कर लेते हैं। तो 17 साल पहले मैंने पहली बार एक कार्यक्रम की घोषणा की, 90 दिन का कार्यक्रम। 90 दिन इसलिए क्योंकि लगभग 40 से 48 दिनों में हमारा सिस्टम तत्वों के स्तर पर एक चक्र से गुजरता है। इसे एक मंडल कहते हैं। हर 40 से 48 दिनों में ये सिस्टम एक तरह के चक्र से होकर गुजरता है। इसी कारण अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं, तो वो आपको हमेशा 40 या 48 दिनों के लिए दवा देंगे, उस चक्र का उपयोग करने के लिए, जो इस शरीर का स्वाभाविक चक्र है। तो मैंने कहा कम से कम 2 मंडल, 3 बेहतर होते, लेकिन अगर मैं 3 कहूं तो कई चीजें होंगी। मैंने कहा अगर आप कम से कम 2 मंडलों की साधना करते हैं तो आप सिस्टम पर नियंत्रण पा सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो आए। और मैं शहर छोड़कर चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि काफी ड्रामा होगा। अब एक परिवार में पति 90 दिनों के लिए जाना चाहता है तो पत्नी कथक करने लगेगी। पत्नी 90 दिनों के लिए जाना चाहती है तो पति घर में रजनीकांत की तरह पेश आएगा, गुस्से में भरा आदमी, एक हीरो की तरह इधर उधर चलेगा। कई तरह का नाटक होगा। तो मैं वहां नहीं होना चाहता। मैंने कहा जो आना चाहते हैं वो आए, ये आपके ऊपर है। तो उसके बाद मैं वापस आया और एक परिवार में गया जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। ये हमारी मेहमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घर आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं। तो ये महिला मेरे लिए पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी। सिर्फ कथक नहीं, वो काली की तरह थी। मैंने उसे देखा, वो एक अच्छी महिला है, Today she's in the Kali form. लेकिन आज वो काली के रूप में है। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे पानी दिया और मैंने कहा माँ, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे ये पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप अभी काली की तरह हैं, मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। उसने कहा क्यों, क्या मैंने जहर मिलाया है? मैंने कहा आपको जहर मिलाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। फिर मैंने कहा आप इस ग्लास में से एक घूंट पीजिए। उसने गिलास से एक घूंट पिया। फिर मैंने कहा अब ग्लास मुझे दीजिए। मैंने उसे अपने हाथों में 2 मिनट तक पकड़ा और उसे दे दिया। अब इसे पीजिए। उसने एक घूंट पिया और उसके आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसने कहा ये तो मीठा है। मैंने कहा बस यही अंतर है। अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? हुँ? अगर हवा और पृथ्वी आपके भीतर मीठा व्यवहार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90% मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परेशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धि के बारे में है। शरीर के तत्वों पर नियंत्रण पाना। सिस्टम के तत्वों पर नियंत्रण होने के बाद
आप अपने आसपास के तत्वों को भी प्रभावित कर सकते हैं। असल में जीवन के साथ आपका पूरा काम, दुनिया में आपका पूरा काम हमेशा बस इन तत्वों के साथ है, एक बहुत बुनियादी रूप में, है ना? तो अगर आपके पास इन पर महारत है, तो जो आप चाहते हैं, आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपका इरादा, आपको मन में विचार भी नहीं लाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप सोचें, आपके लिए जीवन उसी तरह से होने लगेगा। तो सफलता चढ़ाई चढ़ने की तरह नहीं है। अगर आप इसे ऊंचा उठाते हैं, अगर आप इसे सबसे ऊपर ले जाते हैं, तो सब कुछ ढलान की तरह होता है। ढलान में दौड़ना आसान है या चढ़ाई में? निश्चित रूप से ढलान में, है ना? क्या कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद है? आज इस बारे में पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत मौजूद है कि कैसे पानी की आणविक संरचना को अलग तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, रासायनिक संरचना को बदले बिना। Even with a simple तो आपको ये बात समझ में आई होगी। सब तक आवाज पहुंची थी अच्छे से? दीपक जी, आवाज पहुंच रही थी ना? हाँ जी, पहुंच रही है। परफेक्ट। सो आप देखेंगे कि जो इन्होंने एक बात बोली कि जब उन्होंने वो जल पिया और वो जो लेडी थी जो पानी लेकर के आई थी, उसने पहले पानी पिया और बाद में पानी पिया, उस दोनों पानी में फर्क था। तो कई ऐसे शोध हुए हैं, मैं धीरे धीरे और उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। परंतु आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज करके देखिएगा। जो भी आप गिलास में पानी पीते हैं, उस जल को आप उससे बात करें। आपको मेरी बात अटपटी लग सकती है, परंतु क्योंकि मैं आपसे सब मन की डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे एकदम क्लियर। मैं जब भी जल पीता हूँ तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं जल से बात करके ही जल पीऊं। तो जल से बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जल हमारी बात को सुनता है। अगर हम जब जल से बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये ग्लास है, तो मैं ग्लास को ये कहूं कि बहुत धन्यवाद, आप अमृत समान हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं, मेरे शरीर को बहुत ही आप गुण देने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि उस जल की प्रवृत्ति बदल जाएगी। और आप ऐसे करके देखिएगा। जल का स्वाद, खाने का स्वाद, खाने में भी जल होता है। खाने को जब खाएं तो उससे हम शास्त्रों में और पुराने आप देखोगे, या आप लोग भी, बहुत लोग खाना खाने से पहले हम हाथ जोड़ते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। उसके साथ एक और चीज करके देखिएगा कि खाने से बात करिएगा। खाने को आपकी आवाज सुनाई दे, उसको सुनाई दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अमृत हैं, आप मेरे शरीर को बहुत ही गुण देने वाले हैं। उससे कुछ अच्छे शब्द जो भी आपके मन में आए, उससे बात कीजिएगा। आप देखेंगे उस खाने का स्वाद बदल जाएगा। हम कई बार बात करते हैं कि मंदिर का लंगर का खाना बहुत स्वाद होता है, और वही आप आलू पूड़ी घर पे बना लो, स्वाद नहीं आता। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वह खाना या जल वो सुनता है, और वहां पे जो अच्छा वातावरण है, वहां पे जो अच्छी बातें सुनाई जा रही है, वो जल उसको सुनता है। तो हमारे को अपने आप को अगर पॉजिटिव करना है, हमारे को अच्छी सोच लानी है, हमारे जीवन में अगर हमें बदलाव लाना है, तो सोच को अच्छा होना पड़ेगा। और सोच को अच्छा होने के लिए हमें अपने शरीर के अंदर जो भी जा रहा है उसको पवित्र डालना पड़ेगा। अंदर वाले को तो ठीक करना है, वो एक अलग बात है। पर जो हम नई चीज बाहर से डाल रहे हैं, हम जो खाना डाल रहे हैं, हम जो पानी डाल रहे हैं, उसको हमें अच्छा करके डालना बहुत जरूरी है। तो जैसे कल मैंने बात की कि हम धन्यवाद करें हर चीज का, हम अपने परिवार का, अपने घर का, अपने सामान का, अपने कंपनी का। उसी प्रकार से हर चीज में जल तत्व है, वो सुनता है। हमारी कंपनी
कि हर चीज सुनती है। जब भी हम कहते हैं यार ये क्या औजार है, यार ये क्या मशीन है, उस मशीन के अंदर जो जल तत्व है वो भी सुनता है कि ये मेरे को कोस रहा है या मेरे को अच्छा बोल रहा है, या किस टाइप की भाषा वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, कई सालों से ये बात कहता आया हूँ कि जब भी हम फोर्जिंग करें, जब भी हम कोई पार्ट करें, मशीनिंग करें, कटिंग करें, हमें एक आदत अपने बीच में डालनी चाहिए कि हम उन पार्ट्स से बात करें। ये कोई पागलपंती वाली बात नहीं है। हर चीज के अंदर 5 तत्व है, ये आप लोग जानते हैं, मेरे से बेहतर आप लोग इस बारे में समझते हैं। तो जब 5 तत्व हैं और उसमें जल तत्व भी है, तो जल तत्व पे शोध हुआ है कि जल तत्व सुन सकता है। और ये आप खुद ही इन चीजों को समझ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और आप जब इसको खुद पे आजमाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी कि ऐसा होता है। तो कोशिश करें कि एक प्रैक्टिस अपने रोज में डालें। आज भी जब आप अभी 2-3 मिनट के बाद, जब आप इस सेशन के बाद जो पानी लें, उसको कुछ अच्छी बात सुना करके जल ग्रहण कीजिएगा। या आपको एक और चीज बताऊं कि जल को पहले तो ऐसे ही पी लेना आधा ग्लास, और उसके बाद आधा ग्लास को अच्छा सुना करके पीना। वही ग्लास उसको आप देखेंगे कि आपके उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाएगा। तो हम जैसा विचार बनाते हैं, हम जैसा बोलते हैं, वो हमारे वातावरण सुनता है, हमारी सब चीजें सुनती है। तो हमारा शरीर भी सुनता है। शरीर तो हमारे पास में है, उसका कण कण सुनता है। और वो 60-70% से ज्यादा पानी होना शरीर के अंदर, मतलब कि वो चीजें सुन रहा है। तो हम अगर अच्छा बोलेंगे कि शरीर को धन्यवाद करेंगे, अच्छी बातें इसको सुनाएंगे, तो आप देखेंगे अपने अंदर आपको परिवर्तन लगता है, आपको अच्छा लगने लग जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी हर चीज को धन्यवाद करें, प्रणाम करें, उसको अच्छी बात बोलें, उसको धन्यवाद करें। कोई पार्ट बन के हाथ से जब निकले तो उसको कहें कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुम जरूर जहां जाओगे वहां उसके लिए मंगल करोगे। तो वो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको वो महसूस होने लग जाएगा अपने अंदर। और जितना आप विश्वास से करेंगे, आप देखेंगे उतना ये फास्ट आपको प्रत्यक्ष पता भी लगने लग जाएगा। तो मुझे इस चीज का काफी आभास हो जाता है जब जल की क्वालिटी पीते समय। और इसको आप करें, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप एनर्जी को फील कर पाएंगे, जो जल के अंदर जो एनर्जी है। और जो मैंने कल एक बात बताई थी कि ब्रह्मांड को हम जैसा सुनाते हैं, जैसा बताते हैं, हमारे पिता को हम जैसा बोलेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। तो वैसा ही ये जो जल तत्व है, हम इसको जैसा सुनाएंगे वैसा ही हमारे साथ होने लगेगा। आई एम श्योर सबको ये बात उन्होंने सुनी, उनको समझ में आई है। इसको करके देखिएगा। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं कई बार कहता हूँ कि आम जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं पता लगेगा। तो आप अगर आम का स्वाद चखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो एक बार इस आम को जरूर खा के देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई पॉइंट है किसी का? तो मैं देखो, हमारी गौ माता ने भी हाँ बोल दी इस बात में, वो भी कह रही है कि हाँ इस बात में दम है। तो खैर अब इसको मेरे यहाँ बोल रही है सर। जी 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 दयाराम जी। तो मेरे यहाँ से बोल रही है सर। हाँ हाँ अच्छा, हाँ वो पता लग रहा है इसमें। मेरे यहाँ से बोल रही है। हेलो, हाँ सर, मेरे यहाँ से बोल रही है गौ माता। हाँ हाँ वो सुनाई दे रहा है मेरे को, वो इसमें पता लग जाता है कि आवाज कहाँ से आई। जी जी जी, मेरे यहाँ से बोल रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो भी कह रही है इस चीज को जरूर करके देखना। खैर तो सब लोग इस चीज को कीजिएगा,
कल फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और कल अपना अपना एक्सपीरियंस बताइएगा इस चीज का, ठीक है? गाय गाय माता को भी ना जो खिलाएं तो उसको कुछ अच्छा सुना करके खिलाइएगा, वो भी देखे बड़ा और खुश होगी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिएगा। ओके। गुड नाइट, नमस्ते।